Students, once again we are ready to learn this chapter Agriculture of Social Science. So once again I would like to repeat the points that you have studied in this chapter. The first one was that what is agriculture, the definition that you have learned. Then types of farming. What were the types of farming that I told you? Primitive subsistence farming, and where this primitive subsistence farming is found, that also you have seen, and a number of countries in which different names are given for this primitive farming. So you have studied, I hope you have gone through the chapter. And next was that intensive subsistence farming. This was also, I told you, means the farmers are having the agriculture on large area, and they are growing the crops not only for them but for the people also, means they are selling it and earning the good money. The next was commercial farming. Commercial farming is that these are food crops are not included in it. For example, sugar cane. The next is pulses and groundnut, oil seeds. These are the crops which are grown not for the purpose of farmer only, but the purpose of growing is to sell it in the market and to earn huge sum of money. So that's why these crops, this category of the crop or this category of farming is known as commercial farming. In the commercial farming, one type was there, plantation. I told you, plantation regarding the tea plantation, coffee plantation, and one more thing, just teak wood, etc. These type of plantation is done. Rubber plantation also comes in that. And these trees, through these trees, the crops means that parts of that tree are taken, or later on the sap, you can say. In rubber plantation the sap is taken, and in tea gardens the leaves are taken, and these plantation crops are also a type of commercial farming. So you come to know about this also. Now I would like to tell you about cropping pattern. It refers to environmental differences that gives rise to the different cropping season in India. किस तरह का वातावरण हमारे आसपास में पाया जाता है? यदि बारिश ज़्यादा है तो उस तरह का क्लाइमेट रहता है, तो हम उस तरह की फसलें बोते हैं. बारिश कम है तो हम मक्का, ज्वार, बाजरा इस टाइप की फसलें बोते हैं. जैसा मैंने बताया आपको कि बारिश अगर ज़्यादा है तो चावल की खेती होती है जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है. तो बात ये उठती है कि क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सॉइल कैसी है, और टेम्परेचर वगैरह जो पूरा एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं वो किस तरह के हैं. अब क्रॉपिंग सीज़न इंडिया में क्या होते हैं? तो क्रॉपिंग सीज़न इंडिया में तीन तरह के हैं, दो मेन हैं. पहला वाला है रबी क्रॉप्स. हम अगर जनवरी फरवरी यहाँ से चालू करते हैं साल को, तो हम सबसे पहली क्रॉप आएगी रबी क्रॉप. क्या होती हैं रबी क्रॉप्स? लेट अस सी. दीज आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ विंटर. मतलब ये कब बोई जाती हैं? विंटर की शुरुआत में बोई जाती हैं. और इनका अगर मंथ अगर हम देखें तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको ग्रो किया जाता है, बोया जाता है. एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग और एट द स्टार्ट ऑफ समर. अप्रैल से जून महीने के अंतर में, दौरान में ये फसलें आ जाती हैं और इनको हार्वेस्ट काट लिया जाता है. सम क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द सीजन आर द मेन क्रॉप्स यू कैन कंसीडर ऑफ दिस रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम्स एंड मस्टर्ड. आप जानते हैं गेहूं की फसल इस समय दिवाली के आसपास बोई जाती है, मतलब विंटर स्टार्ट हो जाता है. चना और मटर, जौ, सरसों,
ये सब फसलें रबी क्रॉप्स होती हैं क्योंकि ये विंटर में बोई जाती हैं। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. Reason for successful rabi crop is winter month is due to western temperature cyclones that causes rainfall. इसका इन राज्यों में ये फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं रबी क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ तो हैं ही, साथ ही साथ इनमें टेम्परेट साइक्लोन्स के द्वारा रेनफॉल होता है, जो सर्दी के दिनों में बारिश होती है कभी कभी, जिसे हम मावठा के नाम से हमारे रीजन में जानते हैं। तो ये जो बारिश होती है इस फसल के लिए बड़ी उपयोगी होती है और उससे इरिगेशन की भी बचत हो जाती है, पानी ज़्यादा नहीं पिलाना पड़ता। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये मेनली ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर विंटर में एक बार या दो बार रेन हो जाती है और वो इस फसलों के लिए वरदान होती है, अच्छी फसलें इसमें उगती हैं। The green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has led to the growth of rabi crops in this region. ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को उगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्रोडक्शन किया जाए। वो प्रोसेस जो सरकार ने प्लानिंग लॉन्च किया था उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। आजकल इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश का भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश आज भी इन फसलों को उगाने में नंबर 1 है। गेहूं का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब और हरियाणा से भी ज़्यादा मध्य प्रदेश में होने लगा है। तो आपने रबी क्रॉप्स देखी, कौन कौन सी रबी क्रॉप्स होती हैं। गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, ये सब रबी क्रॉप्स हैं। कब बोई जाती हैं? ठंड आने की शुरुआत में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और जब बसंत ऋतु आती है या समर की शुरुआत होती है तब ये हार्वेस्ट की जाती हैं, काटी जाती हैं, यानी कि मार्च के महीने से लेकर के अप्रैल तक में इन फसलों को काट लिया जाता है। नेक्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या हैं? दीज क्रॉप्स आर सोन ड्यूरिंग द मानसून मई टू जुलाई। खरीफ क्रॉप वो हैं जो अभी आपके खेतों में उगी हुई हैं। ये सब खरीफ क्रॉप हैं जो गर्मी के सीज़न में, गर्मी नहीं कह सकते हम, बारिश का आगमन हो जाता है, मई से जुलाई के बीच में इन फसलों को बोया जाता है। हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में या सितंबर के स्टार्ट से ही चालू हो जाता है। जो ये फसलें होती हैं ये आना चालू हो जाती हैं अक्टूबर के महीने से। और मेजर खरीफ क्रॉप्स इसमें क्या हैं? पैडी, पैडी मतलब राइस को धान कहा जाता है और धान का नाम होता है पैडी। मेज़ मतलब चावल, और जो मेज़ मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है मतलब तुअर जिसको बोलते हैं आप दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये खरीफ क्रॉप्स हैं और ये इसी बरसात के सीज़न में बोई जाती हैं। और आप देखते हैं अभी आप भुट्टे खाते हैं तो भुट्टा आता है कैसे? ये खरीफ क्रॉप में मेज़ है, कॉर्न या मेज़ हम कहते हैं इसको, और ये इसी खरीफ में बोया जाता है। मेजर एरियाज वेयर द पैडी इज कल्टिवेटेड आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। In well irrigated areas of Assam, West Bengal, Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year named Aus, Aman and Boro. देखिए ये जो मेजर क्रॉप्स आपको जो भी बताई हैं ये कहाँ कहाँ? आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश। खास नाम इनके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें चावल का मेन होता है इसलिए, और चावल इन राज्यों में ज़्यादा होता है। ओडिशा हुआ, आसाम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश में भी, और साउथ के जो हिस्से हैं तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट जो है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर चावल होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इनमें आपको जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है,
ये फसलें इनमें इधर होती हैं महाराष्ट्र के, और इसमें भी बिहार और उत्तर प्रदेश ये सब इसके लिए फेमस हैं। और इन वेल इरिगेटेड एरियाज़, आसाम के जो बहुत अच्छे एरियाज़ हैं जहाँ इरिगेशन अच्छा होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पर 3 बार धान की फसल ली जाती है। और ये फसलों को हम कहते हैं औस, अमन और बोरो। तो ये 3 बार जो फसलें ली जाती हैं उन तीनों के अलग अलग नाम हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फसल आपकी इसमें बोई जाती है मई जून में, वो आ जाती है अक्टूबर में। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द खरीफ क्रॉप्स। आई वॉज गोइंग टू टेल यू दैट इन मध्य प्रदेश सोयाबीन, द लार्जेस्ट soybean producing state of India is Madhya Pradesh, and in case of wheat also. So the name of Madhya Pradesh is not counted here in this book, but you must be aware about that this state is also progressing a lot as compared to the other states. The agricultural rate is 19 point something, and Madhya Pradesh got Krishi Karman Award 3 times from the time of 2011 to 16. So 2 types of crops you have studied here. One was Rabi, another was Kharif, and the third one, this is grown in a small region of this country, but this is also important. That's why you have to pay more attention on this also. The third category is जायद crops. इनको जायद फसलें कहा जाता है। These crops are grown between रबी and खरीफ season. जहाँ रबी की क्रॉप आती हैं, रबी की क्रॉप को पहले बो दिया जाता है सितंबर के एंड में, और ये फरवरी मार्च के आसपास, फरवरी एंड तक जाते जाते ये फसल पूरी आ जाती हैं और इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। उसके बाद जो जगह बचती है, उसमें जो समय बचता है, फरवरी से लेकर के अप्रैल मई तक ये फसलें होती हैं, जायद क्रॉप्स होती हैं। इनको अगर देखा जाए तो क्या है, ये हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। ये आप देखते हैं गर्मी के दिनों में ककड़ियाँ आती हैं, है ना, और तरबूज और खरबूज भी आते हैं। तो ये जो फसलें हैं ये बहुत जल्दी आती हैं, 2 या 2.5 महीने के अंदर ही ये फसलें आ जाती हैं, और इनको बोया जाता है और इनको हटाने के बाद वापस से खरीफ क्रॉप को बो दिया जाता है। तो इस तरह से रबी और खरीफ तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ ये क्रॉप्स भी ले लेते हैं। इन क्रॉप्स में आपका कुछ सब्जियां भी होती हैं जो 2-2.5 महीने के भीतर में अच्छे से आ जाती हैं, वो भी इनमें बोई जाती हैं। और फॉडर से मतलब होता है चारा। आप जानते हैं जहाँ पशुपालन होता है, डेयरी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर, मतलब जो भैंसों को, गायों को पालते हैं, उनको खिलाने के लिए पशुओं को चारे की आवश्यकता होती है। इसलिए फॉडर जो होता है, जो 40 डेज़ के भीतर में उग जाता है, वो भी इस गर्मियों में बोया जाता है और उसको भी इस जायद क्रॉप के अंदर कैटेगरी में लिया जाता है। तो आपने ये 3 कैटेगरी आपने क्रॉप्स की पढ़ी। नाउ वुड लाइक टू स्टडी हियर मेजर क्रॉप्स। इंडिया में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं और वो किस तरह से कहाँ कहाँ होती हैं। मैनी वेरिएंट्स ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन वेरियस रीजन्स ऑफ कंट्री डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस, सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन। अलग अलग, मैंने आपको बताया था, अलग अलग मिट्टी, उसकी बरसात, बारिश का टेम्परेचर होना, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं कि किस तरह की फसल वहाँ पर बोई जाए। आपको मैं बताता हूँ, जैसे जो ज़मीन के अंदर की फसलें होती हैं, आलू और इस टाइप का, इनको बोने के लिए जो हल्की भुरभुरी मिट्टी होती है उसमें ये फसलें ज़्यादा होती हैं। तो जो अलुवियल प्लेन हैं, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद और गंगा के जितने किनारे की जो जगह हैं, उसमें आलू की खेती बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं। तो ये काहे पर डिपेंड हुआ, मिट्टी के ऊपर डिपेंड हुआ। इसके अलावा बारिश यदि कम होती है तो ज्वार, बाजरा, मक्का, इनको बोया जाता है, उड़द और मूंग को बोया जाता है, क्योंकि ये
50 से 60 दिनों में पक जाने वाली फसलें हैं। और यदि बारिश अच्छी मिलती है तो हम सोयाबीन की खेती करते हैं। तो जहाँ जहाँ बारिश का और मिट्टी का जैसा है वहाँ पर वो चीज़ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। तो आपने देखा, ये मेजर क्रॉप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मेजर क्रॉप्स आप देखें, ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स प्लांट, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, अनाज की और जो फलियों वाले पौधे होते हैं उनकी जो क्रॉप्स होती हैं। अनाज तो आप जानते हैं, आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, ये फूड क्रॉप्स होती हैं, ग्रेन क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूम्स के अंदर मटर, सोयाबीन, जिनकी फलियां होती हैं उनको लेग्यूम्स क्रॉप कहा जाता है। इसमें सारी दालें आ जाती हैं और चने वगैरह सब ये इसके अंदर आ जाते हैं। ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं। तो इनके अंदर ग्रेन्स और लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी विशेष फसलें हैं? राइस है। इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। The kharif crop requires high temperature and high humidity. It is grown in area of heavy rainfall. मैंने आपको बताया कि चावल की फसल जो होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ये चावल की फसल उगाई जाती है। पडल्स बना दिए जाते हैं, कीचड़ टाइप का उसमें पूरा रहता है, और उसके अंदर धान की रोपाई कर दी जाती है। और जितना कीचड़ और पानी ज़्यादा होगा धान की फसल उतनी अच्छी होगी। और ये एक फसल जो है स्टेपल फूड है। आप जानते हैं इंडिया में लोग वेजिटेरियंस हैं या दूसरा भी खाते हों, लेकिन हम फूड क्रॉप्स का भी उपयोग भरपूर करते हैं, चाहे वीट खाते हों चाहे आपका राइस खाते हों। तो ये राइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, कहाँ कहाँ, इन द एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल इन लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इट इज़ ग्रोन विथ प्रॉपर इरीगेशन थ्रू कैनल्स एंड ट्यूबवेल्स। देखिए, पहले तो मैंने बताया कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहीं पर ये हो सकता है, लेकिन जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस रिवर सिस्टम पूरा पंजाब, हरियाणा इधर से गुजरता है, तो वहाँ पर नदियों से सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज से। तो ऐसी स्थितियों में ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इरिगेशन करके और रेनफॉल की कमी को पूरा कर लिया जाता है और ये फसलें बोई जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। चाहे कैनाल से या ट्यूबवेल से भी सिंचाई करते हैं, राजस्थान में कैनाल्स का और ट्यूबवेल का उपयोग होता है। वीट, दिस इज़ अ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया। इट रिक्वायर्स कूल growing season and bright sunshine at the same time of ripening, and 50 to 70 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. देखिए, गेहूं की जो फसल होती है, पहली बात तो गेहूं हमारा मुख्य आहार है। हम गेहूं को पूरा सेंट्रल पूरा इंडिया है, उत्तर भारत है, चावल के साथ साथ गेहूं का पूरा उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ दक्षिण भारत में भी इसका उपयोग गेहूं का होता है। गेहूं की फसल को उगाने के लिए विंटर का सीज़न होता है, कम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन धूप अच्छी होना चाहिए। अभी आप देखिए, ये अक्टूबर मंथ से ये गेहूं का बुआई चालू हो जाएगी। आप पाएंगे कि दिन में और रात में ठंड तो रहेगी, लेकिन सूरज की गर्मी भी रहेगी, मतलब धूप भी रहती है। तो ऐसे में इसको ठंड, रात को अच्छी ठंड गिरे और दिन में अच्छी गर्मी हो, तो ये फसल अच्छे से उगती है। और 50 टू 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की रेंज होती है। जहाँ पर ये होता है वहाँ पर ये हो सकता है, आराम से इसको उगाया जा सकता है। द टू इम्पॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन in country are Ganga Satluj plains in northwest and black soil region of Deccan। फिर मध्य प्रदेश का नाम इसमें नहीं है, पर मैं आपको फिर भी बता दूं कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां पर इरिगेशन नदियों के द्वारा होता था, वहां होता है, वहां पर इसको ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश आज सबसे ऊपर है उसके व्हीट की क्वालिटी में और व्हीट की ग्रोथ में।
यहाँ डेक्कन नाम लिया है। डेक्कन जो रीजन है वो महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र में भी अच्छा गेहूं की फसल होती है, लेकिन मध्य प्रदेश इन सब में आती है। मिलेट्स, मिलेट्स मतलब कोरस ग्रेन होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। रागी भी एक ज्वार जैसा ही एक सब्सटेंस होता है और वो थोड़ा सा रेडिश टाइप का होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और बड़ा पौष्टिक होता है, पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं होता। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ ये रागी ज़्यादा होता है। आपने यहाँ पर ज्वार और बाजरा जरूर देखा होगा। देयर आर ऑल्सो known as chorus grain. They are also known as chorus grain and have very high nutritional value. मक्का के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसके अलावा जितने भी ज्वार और ये हैं बाजरा वगैरह, इनमें भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो ये जो कोरस ग्रेन होते हैं हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले होते हैं। अब हम ज्वार के बारे में देखते हैं। इसको सोरघम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ रिच इन पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम विथ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयरन एंड सोडियम। देखिए, जो हमें हमारे आहार में ये जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये स्मॉल मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ये तो होते ही हैं, सॉरी, रिच होते हैं। और स्मॉल अमाउंट में होता है आयरन और सोडियम। इट इज़ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विच विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ये तीसरे नंबर की क्रॉप है ज्वार, जो भारत में ज़्यादा मात्रा में बोया जाता है। इट इज़ रैन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मेजर एरियाज वेयर विच डू नॉट नीड मच इरिगेशन। ये ज्वार जो है इसके लिए सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। खरीफ क्रॉप है, जो बारिश होती है उसमें भी अगर कम बारिश होती है तो भी ये हो जाती है। इसलिए जहाँ बारिश की मात्रा संभावना कम रहती है वहाँ पर इसको बोया जाता है। सेंट्रल इंडिया में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में और यूपी के जो सदर्न हिस्से हैं उनमें, साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ की बाउंड्री के आसपास भी इसको बोया जाता है। वहाँ पे इस एरिया में इस फसल को लिया जाता है। बाजरा, बाजरा आप जानते हैं एक हरे रंग का एक दाना होता है, छोटा बारीक बारीक सुनहरी हरा, और ये भी एक बहुत अच्छी क्रॉप होती है। इट कंटेंट्स आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन्स। देखिए कितनी चीज़ें हैं। आप लोग कभी इन फसलों का रोटी नहीं खाते हैं, मेरा आपसे कहना है आप ये जितना भी अनाज होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है। हमेशा अपने माता पिता को ये बात बताइए भी जो मैंने बताया है, और उनसे कहिए कि हमें भी फूड में ये चीज़ खाना चाहिए। तो बाजरा के बारे में मैंने आपको बताया। बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉयल, जो रेतीली ज़मीन होती हैं जहाँ शैलो ब्लैक सॉइल टाइप का होता है, हल्की सी भुरभुरी मिट्टी होती है, और साथ ही साथ इसमें भी बारिश की ज़्यादा मात्रा नहीं लगती, क्योंकि राजस्थान के डेजर्ट इलाकों में यही फसल होती है और उसमें पानी भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। रागी, ऑल्सो नोन एज फिंगर मिलेट, इसको फिंगर मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, रागी, है ना। इट इज़ रिच इन आयरन। मैंने आपको बताया कि ये ज्वार के जैसा ही होता है, ज्वार नहीं होती है, पर ये ज्वार जैसा ही एक अनाज होता है, थोड़ा सा रेडिश होता है। इट इज़ रिच इन आयरन, लाल होने के कारण इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैल्शियम एंड रफेज, देखिए कैल्शियम हमें हड्डियों के लिए चाहिए होता है और रफेज हमारे स्टमक की सफाई के लिए आवश्यक होता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। रागी ग्रोज वेल इन ड्राई रीजन ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल। किसी भी तरह की सॉइल हो, रागी को इसमें उगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। मेज, दिस क्रॉप इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर। देखिए मेज जो मक्का है इसको फूड के रूप में और फॉडर के रूप में इसलिए क्योंकि जो पशु होते हैं उनको भी इसको खिलाया जाता है। स्पेशली जो मीट के लिए पशु पाले जाते हैं, गॉट और पिग्स वगैरह, उनको इसका फूड दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी और ज़्यादा बल्की हो जाती है और मीट प्रोडक्शन उनसे ज़्यादा होता है। तो मैज को आप जानते हैं फूड और फॉडर मतलब उनके चारे के रूप में भी और फूड के रूप में, दोनों के रूप में लिया जाता है। इट इज़ खरीफ क्रॉप ऑल्दो इन बिहार
इट इज़ रबी क्रॉप ऑल्सो। देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है कि बिहार में ये रबी क्रॉप के रूप में भी उगता है। मतलब बिहार में यदि आप देखेंगे तो इसको फसल को कब बो दिया जाता है, ठंड थोड़ा सा बीत जाती है उसके बाद बो दिया जाता है, और ये फसल बहुत जल्दी 60 डेज़ में आ जाती है। मतलब दिसंबर बीतने के बाद इसको बोया जाता है और ये जनवरी फरवरी के आसपास ये फसल आ जाती है और उसको काट कर फिर खरीफ की क्रॉप वो लोग ले लेते हैं। तो बिहार में आपने देखा खरीफ क्रॉप को रबी के टाइम में बो देते हैं क्योंकि उनके पास इस टाइप की इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, और साथ ही साथ ये अच्छी मात्रा में उग जाता है क्योंकि ये अलुवियल सॉइल इसके लिए बेस्ट ग्रोथ के लिए मानी जाती है। अब हम देखते हैं पल्सेस। पल्सेस ये कुछ बच गया है, मैं आपको पल्सेस और फूड क्रॉप्स और ये टी और ऑयल सीड्स के बारे में अगली बार बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमारे वीडियोस की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मैं चाहूँगा बस इतना ही काफ़ी है। और आप जो मैंने बताया है प्लीज़ उसको एक बार अपनी किताब में ज़रूर पढ़ें। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप केवल उसकी पिक्चर दिमाग में रख सकते हैं, कहाँ बोया जाता है, किस काम आता है, कब उगता है और कितनी अच्छी फसल कहाँ कहाँ ली जाती है। तो इंडिया की आपने एग्रीकल्चर के बारे में आज जानकारी प्राप्त की, बाकी हम जो बचा है उसको अगले उसमें करेंगे। थैंक यू।